पास्टल केयर एंड काउंसलिंग, और उसमें से हमने सर्वप्रथम पास्टल केयर काउंसलिंग को 2 भागों में हमने बाँटा। हमने देखा पहले कि पास्टल केयर क्या है और उसके बारे में हमने पढ़ा। पिछली क्लास में हमने पास्टल केयर के फंक्शंस पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद है। कौन रिपीट करना चाहेगा? अगर मैंने जैसे बताया था पिछली बार भी, पूरे हफ्ते भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं, जिस दिन आपका क्लास है उससे अगर आधा घंटा पहले भी आप अपने नोट्स रिवाइज करते हैं तो वो अच्छा है, और आपके पास एक नोटबुक हमेशा साथ में होना चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ पास्टल केयर एंड काउंसलिंग किसको कौन बता सकता है कितने फंक्शंस हमने पढ़े हैं? यानी पास्टल केयर काउंसलिंग के जो कार्य हैं, है ना, उसमें क्या सीखा था कि हम जब पास्टरल केयर बोलते हैं, यानी पासवानी सेवकाई जब हम बोलते हैं, उसमें केवल प्रचार करना, प्रार्थना करना, विजिटिंग करना, है ना, संडे स्कूल चलाना, विमेंस मीटिंग चलाना, ये नहीं है। हमने उसको और गहराई से समझा था, है ना। और शायद मैंने आपको काम भी दिया था, काम दिया था, कुछ होमवर्क दिया था किसी को? थोड़ा याद है, थोड़ा याद नहीं है ना, कोई बात नहीं। हम लोग देखेंगे क्या। देखिए, जो मैं आपको काम देता हूँ वो इसी के लिए नहीं है कि मुझे बैठ के चेक करना है कि आपने काम किया या नहीं किया, है ना। वो तो हमारे स्कूल टाइम पे हम लोग करते थे। अभी जो हम आपको काम देते हैं ताकि आप सोचें, विचार करें, जो पढ़ा है उसे कैसे आप प्रयोग में ला सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं, पास्टल केयर एंड काउंसलिंग, वो जब तक हम प्रयोग में नहीं ला सकें, वो बहुत कार्यशील नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं कोई एक्सरसाइज देता हूँ करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आपके फ्री टाइम में आप ज़रूर उसे करें, ठीक है। बाकी जो आपके असाइनमेंट्स होंगे और जो क्या कहते हैं एग्जाम्स होंगे, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। वो अगर आपको नहीं करेंगे आप लोग तो आपके नंबर कटेंगे, मगर ये जो क्लास वर्क है वो आपके सफलता के लिए है, ठीक है। कौन याद दिलाएगा जो 7 हमने फंक्शंस पढ़े थे? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। या जैसी यू वांट टू शेयर? Okay. The 7 functions of a pastor that we saw. First is healing. The person may not be only, the healing may not be only in the spiritual, it can also be in the emotional, in the mental, in the social areas. So number 1 comes healing, where the pastor does that function of getting that person healing and deliverance. Second is sustaining. After healing comes sustaining, where you strengthen that person, you comfort the person, and you build up that person so that he stabilizes. Number 3 is guiding. Guidance, where just like a shepherd guides his sheep, in the same way the pastor will also give guidance in critical or maybe some important decisions that a person has to make. He will guide along. It's not a one-time thing. Throughout life, different stages of life, different different situations that the pastor will have to guide them depending on what they need, guidance that they need. Then next is reconciling, where a person can have conflict maybe with self, can have conflict with somebody else, with another brother, or even conflict with God. And God has called us, especially Jesus came to reconcile us back to the Father. So that ministry or reconciling, to be reconciled back, that is one of the functions where the pastor helps the flock to becomes nurturing. Nurturing is just like a baby is born, that's not enough. The baby needs to be nurtured, taken care of. That's very important to help the child to grow. So every God-given potential that is there in a person, when you nurture, when the pastor nurtures that person, helps that person to build up to the person God wants that particular person to be. So that is nurturing. After nurturing is liberating. Yeah, liberating. A person can be in various kind of bondages, can be mental, can be emotional, can be social. So the pastor needs to identify what is the cause that the person is bound in, and then accordingly give that guidance to the person and help that person to be liberated and live a life that the Lord has called a free life. And last is empowering,
where just pastoral care isn't only taking care or counseling at a particular crisis is not enough. That the person has to be empowered, in the sense you build that person so that that person doesn't be dependent on somebody else. That person can himself manage taking decisions on his own. So it's like sort of you strengthen that person and make him strong enough. So these are the Okay. seven functions that we saw of a Thank you pastor. so much, Jesse, and I'm so glad that you have captured everything. And I'm happy that you are able to understand what we are learning. I think next class I will just share my notes with you and you can take the class. So very well done. Thank you, Jesse, for doing that. Uh, मुझे कितने लोगों को समझ में आया जैसी ने जो बोला, कुछ दिमाग में याद आया पुराने क्लासेस में से? हाथ उठा के दिखा सकते हैं अगर किसी को कुछ भी याद है पुराने क्लास से। ओके, चलो कुछ तो याद है ना? तो मैं पूछूंगा नहीं कि क्या याद है, फिर आप फिर परेशान हो जाएंगे, करे यार ये क्या बोल दिया। ठीक है, मगर मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर मुझे दें, ठीक है? आपके परिवार में, आपके चर्च में एक परिवार आता है और वो अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है और समझ लीजिए कि 6 महीने हुए शादी के, और लड़की को है जो खाना बनाना नहीं आता है सही से, और इस विषय से क्या हो रहा है कि जो लड़के के परिवार वाले हैं और लड़का जो है परेशान है, और लड़की जो है वो भी परेशान है, और वो लोग प्रार्थना में पूरा परिवार आता है और बहुत खुशी के साथ उन्होंने शादी करी थी, मगर खाना बनाना नहीं आ रहा है। इस कारण जो सासू माँ है वो बहुत चिढ़ गई हैं या बहुत परेशान है, और पति जो है मदद करना चाहता है, लेकिन पति रसोई में घुस नहीं सकता क्योंकि उनके खानदान में लड़के जो है रसोई में नहीं घुसते हैं और घर का बर्तन नहीं मांजते हैं या घर में खाना नहीं बनाते हैं। ऐसी अवस्था में है, आप पास्टर हैं या आप उन्हें जानते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। अब जो आपने 6 या 7 फंक्शन जो पढ़े हैं, कार्य जो पढ़े हैं, उसमें से आपको क्या लगता है, क्या इस परिवार की ज़रूरत है और किस दृष्टिकोण से आपको देखना है? जैसे उदाहरण के तौर पे, क्या इस परिवार को चंगाई की ज़रूरत है? हीलिंग सेवकाई की ज़रूरत है? हाँ या ना? अगर हाँ है तो ऐसे बोलेंगे, अगर ना है तो आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है? तो आपको अनम्यूट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इस परिवार को हमने जो पास्टर केएल के कार्य सीखे हैं, उसमें से पहला था चंगाई, चंगाई की सेवकाई पास्टर करते हैं। हमने कहा था वो खाली मानसिक ना शारीरिक नहीं, मानसिक और सब है। आपको क्या लगता है इसमें चंगाई की प्रार्थना करके इस परिवार को हम ठीक कर सकते हैं? हाँ या ना? ओके, विजय आपको क्या लगता है? आपका हाथ नहीं दिखा मुझे। ये ना है, ओके ठीक है। अगर आपने ना बोला है तब अब आप मुझे बताइए, जो ये 7 फंक्शन आपने पढ़े हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कि पासवान को इसमें क्या करना चाहिए? उनमें से कौन-सा भाग है जो पास्टर साहब को करना चाहिए, ठीक है? मैं चाहूँगा कृष्णा अगर बताएँ, कृष्णा आपको क्या लगता है पास्टर साहब को इस समस्या के लिए कौन-सी सेवकाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कृष्णा माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, हाँ। मेरे पास आवाज आ रही है पास्टर जी? पास्टर जी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो पास्टर को ये सलाह देना चाहिए कि जो अगर उसको खाना बनाना नहीं आता, अगर ऐसा चीज है अगर उनके पर ऐसी समस्या है कि अगर उनकी जो सास है अगर वो चिढ़ती है उनसे, तो इधर पे हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनको समझाना चाहिए, या हम उसे कैसे सीखने के लिए या किसी के साथ मिलाप करके और सीख सकते हैं। थैंक यू कृष्णा भाई। मैंने आपसे, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं कृष्णा। मैंने क्यों आपसे ये सवाल पूछा, उसका कारण ये था कि आप समझ सकें कि हर चीज में
एक ही समाधान आप नहीं ला सकते ना। हमने जो पढ़े थे सेवकाई पासवान की सेवकाई के फंक्शन या कार्य, उसमें हमने पढ़ा था पहला की हीलिंग, है ना, यानी चंगाई के बारे में। दूसरा पढ़ा था हमने गाइडेंस के बारे में कि अगुवाई करना, गाइडेंस देना। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, रिकंसिलिएशन पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, पुनः स्थापित करना है यार। जैसे परमेश्वर ने हमें रिकंसाइल किया, अपने साथ पुनः स्थापित किया, यहाँ संबंध टूट रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, आपके लिए छोटा विषय होगा, उनके लिए बहुत बड़ा विषय है, और उससे संबंध टूट रहा है। तो यहाँ पासवान खाली उनको प्रार्थना करके छोड़ेगा तो कार्य नहीं होगा। उनको बैठना, उनके साथ वार्तालाप करना, वो एक उनकी समस्या को समझना, और उसके बाद ये देखना कि किस प्रकार से ये परिवार का संबंध बना रहे, वो बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हमारे आत्मिक रूप से भी, हमारे लिए, हमारे कलीसिया के विकास के लिए भी, सबके लिए परिवार में एकता, परिवार में प्रेम, परिवार में संबंध बनना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐसे समय पर आपको सोचना है कि क्या सेवकाई मैं कर सकता हूँ। हो सकता है आपके कहने पर इस परिवार में अब जो समस्या आई है, वो व्यक्तिगत रूप से ज्यादातर परिवार में नई शादी होता है तो इस प्रकार समस्या आती है। आप अगर उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं तो क्रिश्चियन काउंसलर्स को आप उसमें शामिल करके उनको भी आप ये समस्या के बारे में बताकर उनसे आप सलाह मशवरा लेकर भी इनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरा जो है, उसी के अंदर दूसरा मेरा जो सवाल है, पति को किचन में जाके काम नहीं करना चाहिए। हमारे खानदान में कभी किसी ने, पतियों ने किचन में जाके काम नहीं किया। ये जो विचारधारा है वो सही है या गलत है? या आपको लगता है थोड़ा तो सही है? क्या है, सही है, गलत है? क्या लगता है आपको? गलत है, अच्छा, गलत है। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगा, इस विचारधारा को बदलना जरूरी है या नहीं है? और अगर इस विचारधारा को बदलना है तो क्या ये पासवान का काम है या समाज का काम है, स्कूल का काम है, किसका काम है? आपको क्या लगता है? एनएलएफ नालासोपारा नवीन, नवीन मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ। नवीन नाम है, अनम्यूट करके। हाँ, प्रशांत। हाँ, प्रशांत, आप उसका उत्तर दो मुझे। आपको क्या लगता है, ये पासवान का काम है कि ये विचारधारा बदलनी चाहिए? नहीं, अगर वो परिवार या वो जो जो इंसान है, वो अगर वो पास्टर के पास आता है तो पास्टर उनको समझा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मतलब उसमें से वो अगर वो पास्टर तक बात आती है तो भी तभी तो पास्टर मार्गदर्शन करेंगे, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। पास्टर के जब बात आएंगे तब बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा समझा सकते हैं नहीं करना चाहिए स्त्री या पुरुष या ऐसा, मतलब क्योंकि अगर वैसा देखा जाएगा तो पुरुष ने, अगर पुरुष सिर्फ काम करना चाहिए और स्त्री काम नहीं करना चाहिए बोलेगा तो फिर भी वो भी वैसे तक उसकी तरह सिखा सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं। हाँ जी, क्या, देखो अभी ये जो सेवकाई की बात है या जो ये विचारधारा की बात है, आपको सही शिक्षा कहाँ से मिलती है? बाइबल से, है ना। आप पासवान है तो आपके लिए जो गाइड बुक है वो क्या है? बाइबल है। प्रशांत, अपना माइक म्यूट कर लो आप ना, ठीक है। और जब हम मसीह में आते हैं तो हमारी काफी विचारधाराएं परिवर्तित होती जाती है ना। एक दूसरे का आदर करना, है ना। जैसे इफिसियों के पत्री उसके 5 में लिखा हुआ है कि पत्नी जो है वो पति के क्या रहे? अधीन रहे, है ना। लेकिन उसी पत्री में लिखा है कि पति जो है पत्नी को वैसा प्रेम करे जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, कि अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया ना। अब उस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो अधीनता में रहे, उसके ऊपर बहुत प्रभाव हमारा रहता है। लेकिन पति को इतना प्रेम करना है कि पत्नी के लिए मर गुजरना पड़े जैसे यीशु मसीह ने किया, उस बात पे हमारा प्रभाव कम रहता है ना। तो हमें ये देखनी है हमारी विचारधाराएं जो हैं वो अगर प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है तो वो परिवर्तन होना
जरूरी है। और अगर वो परिवर्तन होता है तो वो सेवकाई जो है, जो हमने आपके साथ सेवकाई पढ़े उसमें से एक था लिबरेटिंग। लिबरेट का मतलब आजाद होना, है ना। लिबरेट का मतलब आपको उससे स्वतंत्र करना, किससे? पुराने स्वभाव से, पुरानी विचारधारा से, है ना। तो आपको जब वो सेवकाई करते हैं तो उस आधार पर आपको सेवकाई करनी है। अगर एक परमेश्वर की आप संतान या कोई भी प्रभु में, लास्ट में जो हमने 7वां कार्य पढ़ा है, एम्पावर करना, यानी उन्हें परिपूर्ण करना, सामर्थ्यपूर्ण करना, वो परख में लेकर आना, उस समझ में लेकर आना, वो तभी होता है जब आपका दृष्टिकोण और आपकी विचारधारा जो है प्रभु के वचन के आधार पर बदलती है कि नहीं। और हमारा जो सेवकाई है वो बहुत जरूरी है कि वो हमारा जो शिफ्ट हमारे दृष्टिकोण में, हमारे विचारधारा में आए। अगर हम केवल चाहेंगे कि हमारे विश्वासी अच्छी प्रार्थना करें, अगर हम चाहेंगे कि जो प्रभु ने हमें दिए हैं वो लोग वचन का अच्छा भेद रखें, लेकिन अगर उनका जीवन रूपांतरण नहीं हो रहा है तो हमारी सेवकाई में हमें देखने की जरूरत है कि हमें क्या बदलाव लेकर आना है। हमारे जीवन में हमें देखने की जरूरत है कि हमें क्या बदलाव लेकर आना। नहीं तो क्या होगा, जैसे एक सरकारी दफ्तर खोल रखा है, स्कूल खोल रखा है और कॉलेज खोल रखा है, उसी तरीके से हम एक कलीसिया खोल देंगे, 4-5 लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए, चंगाई की सभा हो गई और वो लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उस कलीसिया का परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की परिपक्वता में उनका विकास नहीं हो पाएगा, है ना। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता। अगर आप सोचे, प्रभु ने केवल 12 लोगों को चुना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? बदल दिया। और वो बदलने में यीशु मसीह को भी समय लगा, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में बदल दिया। पतरस का दृष्टिकोण हो या किसी और का हो, है ना। जब कोई मारने आया यीशु मसीह को, पतरस ने अपना चाकू निकाल के उसका क्या करा? कान काट दिया। पतरस चाह रहा था कि मैं यीशु मसीह की मदद करूं, उन्हें बचाऊं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या करा? यीशु मसीह ने उसको पीछे करा, जिसका कान काटा था उसको भी ठीक करा। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा। अब यही पतरस, आगे देखते हैं, जब पतरस को मारते हैं तो पतरस वहां पर जो है लिखा हुआ है, वो प्रार्थना करता है। वो अब लड़ाई नहीं कर रहा है, वो बदलाव उसके जीवन में नजर आता है जब उसे बंदीगृह में डालते हैं। और ऐसा माना जाता है इतिहास में कि पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका के मारा गया था, सीधा भी नहीं, उल्टा लटका के। लेकिन पतरस का स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव बनता चला गया, है ना। तो वो है हमारी सेवकाई में जो पास्टरल केयर की हम सेवकाई कहते हैं। इसलिए हमारी जो सेवकाई है वो केवल विश्वासियों को बढ़ाने से या कलीसिया में संख्या बढ़ाने से समाप्त नहीं होती है। और व्यक्तिगत रूप से भी जब हम परमेश्वर में एक दूसरे की मदद करते हैं बढ़ने के लिए, तो एक और दिन में हमारी सेवकाई खत्म नहीं होती है ना। अगर हमें देखना है कि ये सारे कार्यों में वो इस हद, इस स्तर पर पहुंचे जहां पर वो प्रभु की सेवकाई को करना शुरू करे, जहां पर वो दूसरों के जीवन में रूपांतरण को लेकर आ सके, है ना। पास्टरल केयर में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है, या जो सेवकाई जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, वो है काउंसलिंग, जो हमारा पास्टरल केयर काउंसलिंग का दूसरा भाग है। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, अगर आपको दिखेगा तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। दिख रहा है? ओके, गुड। सो जैसा हमने कहा, हमने इस प्रकार से जो हमारे क्या कहते हैं फंक्शंस ऑफ पास्टरल केयर जो थे वो हमने लिखे। आज हमारा विषय जो है काउंसलिंग। काउंसलिंग मैं जब शुरुआत से ही क्लास ले रहा हूँ तब से मैं आपके सामने इस शब्द को बार बार रख रहा हूँ। आपने सुना होगा, आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग होता है बच्चों के लिए, है ना, मैरिज काउंसलिंग होता है, अलग अलग प्रकार के काउंसलिंग होते हैं। हिंदी में जो काउंसलिंग शब्द है उसका एक उत्तर या एक शब्द नहीं है, है ना। माफ कीजिए। तो हिंदी में अगर हम बोलते हैं कि काउंसलिंग का मतलब सलाह है, तो वो काउंसलिंग का एक भाग है, सलाह देना। अगर हम बोलते हैं काउंसलिंग का मतलब हिंदी में कि वो मार्गदर्शन करना है, तो वो भी काउंसलिंग का एक भाग है। कहने का मतलब काउंसलिंग का एक कार्य है। एडवाइस, उसको भी हम सलाह बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कंसल्टेशन, परामर्श करना। और इंस्ट्रक्शन यानी समझाना। ये सारी चीजें काउंसलिंग के अंदर आती है। काउंसलिंग जो शब्द है अंग्रेजी में जो हम
काउंसलिंग बोलते हैं, वो एक जैसे प्रचार बोलते हैं वैसा ही एक कार्य है। आप समझ पा रहे हैं, है ना? तो उसका हिंदी तुलनामत शब्द जो है वो हिंदी में परिभाषित एक तरीके से नहीं हुआ है ना? तो इसलिए मैं बार बार जो अंग्रेजी का शब्द काउंसलिंग यूज करूंगा, लेकिन उसकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है काउंसलिंग इज द प्रोसेस दैट अलाउज पीपल to discuss their problems and difficult feelings they encounter in a safe and confident environment। हिंदी में अगर मैं बोलूं कि काउंसलिंग जो है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रक्रिया है, जिसमें जो लोग हैं अपनी समस्याओं को रख पाते हैं, अपनी भावनाओं को रख पाते हैं एक ऐसे वातावरण में जहां पर उनको सुरक्षा महसूस होती है ना? तो दूसरा जो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस वेयर ट्रेन्ड काउंसलर हेल्प्स द क्लाइंट टू हेल्प देमसेल्फ। काउंसलिंग ऐसा एक प्रक्रिया है जहां पर प्रशिक्षित प्राप्त किया हुआ काउंसलर मदद करता है व्यक्ति के कि वो अपने आप की मदद कर सके, है ना? हेल्प द क्लाइंट टू हेल्प देमसेल्फ, ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है काउंसलिंग के अंदर, है ना? अगर आप इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो काउंसलिंग जो है जिस प्रकार से रीचिंग एक कार्य है, वैसे ही मैंने बताया कि काउंसलिंग जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ स्टडी है, यानी उसका आप देखेंगे लाइसेंस काउंसलर्स होते हैं, है ना? उसमें भी उसी प्रकार से जैसे MBBS एक डॉक्टर होता है उसके बाद MD वो डॉक्टर बनता है, उस प्रकार से काउंसलिंग में भी एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग विषय के ऊपर आपको काउंसलिंग देने के लिए, तो वो प्रशिक्षण करते हैं। हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग की जो चीजें हैं वो पासवान अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? जैसे जब आप प्रचार सीखते हैं, आपका एक क्लास हुआ होगा होमिलेटिक्स, है ना? अगर नहीं हुआ है तो आगे आपको क्लास होगा, है ना? उसमें क्या सीखते हैं आप? ये नहीं सीखते खाली कि वचन से कैसे वचन का अध्ययन करना है, प्रचार बनाना है, लेकिन आप उसमें सीखते हैं कि जब आप प्रचार को प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है, जो कि आता है कहाँ से? स्पीकिंग से, पब्लिक स्पीकिंग के जो टेक्निक्स हैं वहां से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि जब हम प्रचार करते हैं तो आपको उस आंखों को लोगों के साथ आंखों से कांटेक्ट बनाना है, आपका साउंड मॉड्यूलेशन होना है, ये सब, है ना? उसी प्रकार से इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो काउंसलिंग की टेक्निक है वो हम किस प्रकार से, या काउंसलिंग का हम किस प्रकार से पासवान सेवकाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों काउंसलिंग को इतना महत्व पासवान की सेवकाई में दिया जा रहा है? उसका कारण ये है क्योंकि जो पासवान की सेवकाई के कार्य हमने देखे हैं, है ना? गाइडिंग, नर्चरिंग, हर भाग में कहीं ना कहीं काउंसलिंग को आप प्रयोग में ला सकते हैं। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? समझ में आए तो क्या करना है, नहीं समझ में आए तो ठीक है। ये मैंने बच्चों के क्लास से सीखा है, जो आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, क्योंकि अगर बच्चों को म्यूट अनम्यूट करने के लिए कहे तो आधी क्लास तो उसी में निकल जाएगी। तो मैडम बस पूछती है कि समझ में आ रहा है तो ये, नहीं समझ में आ रहा है तो ये, ठीक है। सो दैट इज अ गुड वे ऑफ सेविंग आवर टाइम, ठीक है। तो काउंसलिंग में कुछ चीजें हैं जो अब काउंसलिंग क्या नहीं है वो भी आपको समझना है। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपके चर्च में क्या लोग काउंसलिंग करते हैं, ये बोलते हैं हाँ जी हम तो, है ना, पास्टर भी काउंसलिंग करते हैं, सब काउंसलिंग करते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। काउंसलिंग जैसे मैंने कहा वो एक ट्रेंड प्रक्रिया है। हाँ, इनफॉर्मल काउंसलिंग किसको बोलते हैं? इनफॉर्मल काउंसलिंग जहां पर आप काउंसलिंग का ही कार्य करते हैं लेकिन वो ट्रेंड तरीके से नहीं है। उसका सिंपल उदाहरण, जैसे कि आप लोगों को खुद पता है पेट में दर्द होगा या बुखार होगा तो कौन सी दवाई लेनी है ना? उसके लिए आप डॉक्टर के पास तक नहीं जाते हैं, आप क्या कहते हैं, अरे बुखार हो गया तो कौन सी दवाई लेते हैं? किसी को पता है बुखार हो गया तो कौन सी दवाई लेते हैं ज्यादातर? प्रवीण, दवाई लेते हैं आप बुखार होता है तो कौन सी दवाई लेते हैं? नाम पता है कोई दवाई का? माइक अनम्यूट करके बोलना। पैरासिटामोल लेते हैं ना। ये हमारे पास जानकारी है जो हमें पहले से है ना। काउंसलिंग में भी अभी, लेकिन अगर उससे भी बुखार आपका ठीक नहीं हुआ तो क्या करते हैं आप लोग? फिर आप जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर भी बोलता है कि अरे मुझे भी नहीं समझ में आया तो ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा
तब जाके पता चलेगा, है ना, फिर डायग्नोस होता है। उसी प्रकार से काउंसलिंग जो है हम सब करते हैं एक तरीके से, जैसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल काउंसलिंग, यानी किसी को सलाह देना, किसी को मार्गदर्शन करना, है ना, जो भी मैंने बताया जो शब्द है ना, किसी परामर्श करना, हम सब करते हैं। लेकिन काउंसलिंग जो प्रोफेशनल की तरीके से या उसको एक उस भाग से लेने का तरीका कैसे करते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब आपकी सेवकाई में प्रार्थना करना और लोगों को सलाह देना, लोगों का मार्गदर्शन करना, ये सारे कार्य हम लोग करते हैं। इस क्लास के बाद जो मैं चाहूंगा कि क्या बदलाव आए, वो ये कि जब आप ये कार्य करें तो इन बातों को अपना ध्यान में आप रखें कि अच्छा, अब मैं जब ये कर रहा हूँ, ये काउंसलिंग के अंदर ये बातें आती हैं और इन चीजों का मुझे ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा, वार्तालाप जो हम करते हैं, जैसे भी मैंने बताया, किसी ने हमारे पास आए, समस्या बताई, हम उन्हें सलाह देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो काउंसलिंग केवल टॉकिंग थेरेपी नहीं है कि हमने वार्तालाप किया, उन्हें समझाया और चले गए, है ना, तो वो नहीं है। काउंसलिंग में जो है, जब आप किसी को बोलते हैं कि हम बैठेंगे आपके साथ इस बारे में चर्चा करेंगे, तो जो एक टेक्निक आप यहाँ पे सीखेंगे, जब आप उसे याद रखेंगे, आप देखेंगे कि आप कितने प्रभावशाली रूप से क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अपनी मदद करने के लिए तैयार कर सकते हैं, है ना। देव, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, काउंसलर हेल्प्स द क्लाइंट टू हेल्प देमसेल्फ, है ना। तो वो फर्क आता है। कभी भी अगर आप किसी ने अगर काउंसलिंग सेशन अटेंड किया हो पर्सनली भी, आप देखेंगे काउंसलर्स नहीं बोलते कि हम आपको ये सलाह देते हैं, वो सलाह देते हैं। वो उस क्षेत्र पे आपको लेकर आएंगे जहां पर आप खुद सोचने में विमर्श होंगे कि आपको करना क्या है ना। सो काउंसलिंग अगर जो है मैंने बताया, उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर जो व्यक्ति आपसे समस्या बताने के लिए आ रहा है, उस व्यक्ति को लगे कि आप उसकी समस्या सुनने को तैयार हैं और आप उसकी समस्या में उसकी मदद करने को तत्पर हैं ना। काउंसलिंग का जो आधार है, यानी उसमें 4 चीजें बहुत प्रमुख हैं, ठीक है। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं और इसे एक प्रोफेशन की तरह हैंडल करते हैं या इसे एक सेशन की तरह जब हम लेते हैं, तो ये 4 चीजें आप काउंसलिंग में होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ काउंसलिंग, है। पहली बात क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी को याद आ रहा है कोई शब्द कॉन्फिडेंशियलिटी का? ओके, मेरे भी दिमाग से शब्द याद नहीं आ रहा, बट कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे कि आप किसी के साथ जब कुछ विषय बताते हैं, उस विषय को वो बोलते हैं कि ये विषय जो है मेरे और आपके दरमियान रहना चाहिए, है ना। तो और ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो शब्द है, यानी वो आपके और उनके बीच में रहना चाहिए। उसे हम गुप्त नहीं कहेंगे, सीक्रेट नहीं कहेंगे, बट इट इज लाइक वेयर यू हैव अ ट्रस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप उस व्यक्ति के साथ भरोसा रखते हैं कि आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। क्यों काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी होना जरूरी है? आपको क्या लगता है, जब कोई आपको समस्या बताता है तो वो समस्या आप दूसरों के साथ चर्चा ना करें, ये क्यों जरूरी है? क्या लगता है आपको? रविंद्र, अगर आपके पास कोई समस्या लेकर आता है और वो आपसे कहता है कि हमारे और आपके दरमियान रहे, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है, या आप किसी के साथ भी उसको बांट सकते हैं, या वो ऐसा क्यों बोलता है व्यक्ति? माइक अनम्यूट करके बोल सकते रविंद्र। रविंद्र, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, ये खाली मैं नहीं सुन पा रहा हूँ या आप लोग भी नहीं सुन पा रहे? रविंद्र को नहीं सुन पा रहे ना? ओके, रविंद्र एक बार और माइक म्यूट करके अनम्यूट करके ट्राई करो। हाँ, सॉरी रविंद्र, आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप माइक म्यूट कर लो। विजय आप बताएंगे इसी सवाल का उत्तर? हमें अगर कोई हमारे पास आएगा सलाह लेने के लिए,
तो हमें ये फर्ज होना चाहिए कि हमें किसी को उसके जीवन के बारे में बताना नहीं चाहिए कि ये किस अपने जिंदगी में फेस कर रहा है, किस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर हम उसको बताएंगे तो अगली बार नहीं आएगा हमारे पास कुछ भी सलाह लेने के लिए। यही है। थैंक यू, है ना। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे विजय ने, और मैं सोच रहा हूँ रविंद्र, आप विजय की बात से सहमत है? सहमत है तो हाथ ऐसे उठा के दिखा सकते हैं। ठीक है, हम फिर कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद कि आपका माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सी, कॉन्फिडेंशियलिटी काउंसलिंग में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति जब कैसी भी समस्या हो, जब आपके सामने लेकर आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी समस्या जो है वो आप तक रहे, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पीछे उनको डर है, हो सकता है उनके पीछे उनको शर्म है, बहुत कुछ कारण हो सकते हैं ना। तो जब आपके सामने कोई व्यक्ति बात करने आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इस विषय पे किसी और से चर्चा करना भी ज़रूरत है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं इस विषय में चर्चा कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि अभी कोई आपके सामने आ गया कि मेरे बेटे का क्या कहते हैं पढ़ाई के लिए मुझे आगे क्या अगुवाई करनी है, ये सब, तो इसमें वो नहीं कहेंगे कि आप किसी से बात ना करें, लेकिन आपके और उस व्यक्ति के बीच में वो क्लियर होना चाहिए। पासवान की सेवकाई या जब हम कलीसिया की सेवकाई करते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कलीसियाओं में ये एक समस्या आ जाती है कि पासवान से कोई बात बताई गई है या अगुवे से कोई बात बताई गई है, अगुवे ने वो बात किसी और के सामने बोल दी है, तो जो विश्वासी है या जो चर्च का मेंबर है उसका विश्वास पास्टर से धीरे से उठने लगता है। हो सकता है पास्टर ने अच्छी भावना से ही दूसरे के साथ शेयर करी हो, लेकिन जब उसे दिखता है कि मेरी बात तीसरे व्यक्ति ने मुझे बताई और वो इनके द्वारा पता चली, तो उनका विश्वास क्या होता है, टूटता है। तो उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, जब आपसे कोई विषय बोलता है तो आप बोल सकते हैं क्या मैं इसकी चर्चा कर सकता हूँ, है ना, क्या मैं किसी से सलाह ले सकता हूँ कि आपकी क्या मदद करनी चाहिए। तो वो बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि हाँ आप वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ कहीं जीवन का संघर्ष हो, है ना, कि कोई कह रहा है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, है ना, तो आपको ज़रूरत है कि उसको मदद की ज़रूरत है, या ऐसा कोई विषय हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये गोपनीय रख के, ये कॉन्फिडेंशियलिटी रख कर हम लोग क्या कहते हैं उससे फ़ायदा नहीं है, तो वो आपको फ़ायदा कहने का मतलब उसका जीवन उसमें संकट में है, तो वो आपको रखना है। लेकिन ज़्यादातर जब लोग आपके सामने समस्या लेकर आते हैं तो पूरा आप ये कोशिश करें कि वो जो विषय है, चाहे वो कैसा विषय क्यों ना हो, जो आपको लगे कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, उनके साथ आप क्लियर कर लें कि क्या आप बता सकते हैं, सलाह ले सकते हैं दूसरे से या नहीं, या मैं इस विषय में दूसरे से बात करूं या नहीं, है ना। तो जब वो बात क्लियर हो जाती है तो काफ़ी बार आपका और उनका कम्युनिकेशन नहीं टूटता है, आपका उनका वार्तालाप नहीं टूटता। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल को हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बताएगा? जजमेंटल मतलब क्या होता है? ग्रेस, आप, जजमेंटल मतलब क्या होता है? किसी को जज करना या वो सही या गलत बता देना। वेरी गुड, है ना, किसी को जज करना। तो नॉन जजमेंटल होता है कि आप उस व्यक्ति को क्या नहीं कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं। अब जज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जज को हम हिंदी में बोलते हैं कि आप उनका न्याय ना करें। हाँ, उसका न्याय नहीं, आप उसको आप पहले से ये धारणा नहीं रख रहे हैं कि ये सही है या गलत है ना। न्याय का हिंदी शब्द आता है जस्टिस, है ना, इंग्लिश शब्द आता है। जजमेंटल मतलब, उदाहरण की तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जैसे कि आपके सामने वही जो केस हमने पहले बोला था, पत्नी आ गई और वो बोल रही है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता है ना, और आप पासवान हैं और आपने पहले बता दिया अरे आप लड़की हैं, आपको तो खाना बनाना आना चाहिए, आपके घर वालों ने आपको सिखाया नहीं बेटा कि खाना कैसे बनाना है। जब आप इस प्रकार से उससे बात करेंगे, आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग उसके साथ कर रहे हैं ना, जो दूसरे लोग उसका
चुनाव कर रहे हैं, यानी जज कर रहे हैं या अपने विचारधारा उनके ऊपर रख रहे हैं। नॉन जजमेंटल होता है जब आपसे कोई भी बात लेकर आए, आपको पहले ही नहीं सोचना है कि अरे इस व्यक्ति का ये सोचना गलत है, ये सोचना गलत है। हमारा दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली हमें इस जजमेंटल एस्पेक्ट पे लेके जाता है ना। आप हो सकता है उस व्यक्ति को पहले से जानते हो, इसलिए जब वो व्यक्ति आपके सामने कोई समस्या लेकर आता है, आप समस्या सुनने से पहले ही बोल देते हैं कि अरे मुझे पता है, तू चिंता मत कर, मैं प्रार्थना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, एक काम कर भजन संहिता 91 पढ़ लेना, 92 पढ़ लेना, और हम उसे भेज देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये व्यक्ति मेरा आधा घंटा ऐसे ही खा जाएगा। उस प्रकार की भावना के साथ हम काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं ना। वी शुड नॉट बी जजमेंटल वन थिंग और प्री अज्यूम थिंग्स अबाउट अ पर्सन, है ना। और सही सोच रहा है गलत सोच रहा है वो भी हमको नहीं रखना है ना। हो सकता है वो व्यक्ति किसी चीजों का आदी हो, जैसे तंबाकू खाने का और क्या कहते हैं स्मोक करने का, सिगरेट पीने का या शराब पीने का। तो हमारे ऊपर वो जब उसे कोई लेकर आएगा हमसे बात करने के लिए, तो हमारे ऊपर पहले ही एक विचारधारा है कि ये इस प्रकार से व्यक्ति है ना। तो नॉन जजमेंटल क्यों जरूरत है कि हम नॉन जजमेंटल रहे? आपको क्या लगता है कि हमको क्यों जरूरत है कि कभी कोई व्यक्ति हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है तो हमें उन्हें पहले से उनका चुनाव तो नहीं कहते, मतलब पहले से उनको जज नहीं करना है। जैसे यू गॉट अ वर्ड फॉर इन हिंदी जजमेंटल का? नहीं, ओके। इट्स लाइक दोष नहीं लगाना। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। दोष नहीं लगाना। आपको क्यों लगता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया जैसे है और आपको उससे जब आप बात कर रहे हैं तो उसका दोष नहीं लगाना, यानी पहले से उसको हमें दोषी ठहराना नहीं है, ये जरूरत क्यों जरूरी है? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? ग्रेस, आपका माइक सही से काम कर रहा है, यू कैन टेल। माइक अनम्यूट करके ग्रेस बताइए। ओके, हाँ बोलिए ग्रेस। आपने क्या पूछा था सर, रिपीट करेंगे? कि अगर आपके पास कोई समस्या लेकर आता है तो क्यों आपको नॉन जजमेंटल स्वभाव होना चाहिए उनकी समस्या सुनने? क्योंकि वो व्यक्ति क्या परिस्थिति से मेरे पास आ रहा है या किस बातों से वो गुजर रहा है मुझे नहीं पता रहता है, तो मुझे उस वक्त इतना ही जानना जरूरी है कि वो मेरे पास क्या बात करेगा और मैं क्या उत्तर दे सकती हूँ, इसीलिए उसे जज नहीं करना चाहिए। थैंक यू, है ना। बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया ग्रेस ने, उन्होंने बोला उसकी परिस्थिति क्या है मुझे नहीं पता है। हो सकता है आप व्यक्ति को आप जानते हो पहले से, है ना, उसके आदत को जानते हो, लेकिन वो किस परिस्थिति में आपके पास आया है वो एटलीस्ट सुनने के आपको तत्पर होना जरूरी है ना। तो इसीलिए जब भी कोई आपके पास समस्या लेकर आता है, सर्वप्रथम आपको काम क्या करना है कि वो आप सुनने के लिए तैयार हो। आप पहले से ही एक दोष की भावना लेकर उसके सामने ना बैठे, है ना। और काफी बार ये होता है कि हम पहले से ही एक विचारधारा लेकर बैठते हैं और उस विचारधारा के आधार पर ही उन्हें सलाह देते हैं या आधार पर ही उनकी मदद करते हैं, जिससे वो सही मदद नहीं हो पाती है। ठीक है, तो काउंसलिंग की दो चीजें हमने देखी, एक कि आपकी बातें गोपनीय हो यानी कॉन्फिडेंशियल हो, दूसरा कि आप दोष की भावना के साथ उनसे बात ना करें, तीसरा काउंसलिंग में हम अलग अलग प्रकार की तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये तकनीकियां कहाँ से आती है काउंसलिंग में? मनोविज्ञान से वो तकनीकियां हम लोग सीखते हैं, है ना। ज्यादातर काउंसलिंग जो करते हैं उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा होता है, कहने का मतलब मनोविज्ञान पढ़ा होता है। और मनोविज्ञान का मेन कार्य क्या है? मनुष्य के विकास और मनुष्य के विचारधाराएं या मनुष्य का जो पर्सनैलिटी और मनुष्य के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है ना। तो उसमें से काफी चीजें सीखने को हैं जिसे काउंसलिंग में इस्तेमाल की जाती है ना। तो वो टेक्निक्स का इस्तेमाल करना भी हमको आना चाहिए। और ये जो मनोविज्ञान है, ये लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, जहाँ से हम लोग वो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। काफी बार कलीसियाओं में इस प्रकार से भी माना जाता है कि हम साइकोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल
सेवकाई में या इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी शिक्षाएं हैं, है ना, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, है ना, सबको सही रूप से हमें सेवकाई में इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे भी साइंस में हम लोग पढ़ते हैं एक थ्योरी जिसको बोलते हैं कि डार्विन थ्योरी, है ना, कि हम लोग क्या है, बंदर में से हम लोग मनुष्य बनकर आए हैं, जो कि एक हाइपोथेसिस है। कहने का मतलब वो एक थ्योरी है जो कि साबित नहीं हुई है, एक विचारधारा है जो काफी लोग मानते हैं, मगर क्योंकि वो हम लोग नहीं मानते हैं करके हम पूरे विज्ञान को जो है हम लोग नकारा नहीं करते, है ना। हम उस विज्ञान को बाइबल के आधार पर भी हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को भी, उसमें कुछ चीजें हैं जो आप शायद हम लोग नहीं मानते होंगे, मगर उसके पूरे विज्ञान को हम नकारा नहीं करते। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। इसलिए काफी बार क्या होता है, जब काउंसलिंग हम बोलते हैं या कलीसिया में काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलर्स के साथ हमें वार्तालाप करना चाहिए, तो इस प्रकार की विचारधारा आती है कि नहीं, ये लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, साइकोलॉजी बाइबल के विरोध में भी बोलती है, तो फिर उससे गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। टेक्निक्स को सही रूप से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक विज्ञान है या एक ज्ञान है जो हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तीसरा, जब आप किसी को काउंसलिंग सेशन लेते हैं तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल कहने का मतलब, जैसा मैंने कहा कि वो जो है उसमें आप उसकी एक अच्छी शैली से आपको वो काम करना है, केवल इतना नहीं कि आप बात कर रहे हैं उनसे और उन्हें भेज दिया, है ना। प्रोफेशनल होने के लिए किस प्रकार से आप लोग जब काउंसलिंग का सेशन लेते हैं, जब आप किसी को काउंसल करते हैं, तो किन बातों का ध्यान देना है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 चीजें जो है काउंसलिंग के पिलर्स माने जाते हैं। कहने का मतलब दीज आर द 4 important थिंग्स इन काउंसलिंग। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, है ना, पहला, जैसे मैंने कहा, आपकी और उनकी बात जो है आपके साथ सीमित रहना बहुत जरूरी है, वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, दोष आरोहण नहीं होना चाहिए कि आपने उनके ऊपर दोष लगाया है, पहले से उस विचारधारा से हमको नहीं बैठना है। तीसरा, तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथा जो है, इट शुड बी प्रोफेशनल, जहाँ पे उनको लगे कि वो भले ही आपके साथ 40 मिनट, आधा घंटा बैठे हैं, मगर आपने उन्हें सही प्रकार से सुना है और आप जो वो समस्या लेकर आए हैं उसकी ओर आप ध्यान दे रहे हैं और आप मदद करने को तत्पर हैं। ये सारी बातें जो है प्रोफेशनल रूप से यहाँ पर आती है। और मैं इस बात के ऊपर जोर दूंगा ना कि जो भी हम लोग आत्मिक कार्य करते हैं, अपनी पासवान की सेवकाई करते हैं, या कोई भी सेवा या कोई भी कार्य प्रभु ने हमें दिया है, उसमें एक परिपक्वता के साथ उसे अच्छे तरीके से करने में हमेशा हमें उस विचारधारा से रहना चाहिए, है ना। चाहे वो भले संडे का प्रचार क्यों ना हो, कि मुझे हर संडे कर रहा हूँ, बस एक वचन उठा लिया और वो तैयार हो गया, नहीं, है ना। जब आप उस प्रकार से करेंगे, जब आप कोई भी काम उस समर्पण के साथ करेंगे, तो उसका प्रभाव जो है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब काउंसलिंग के अंदर, जैसा मैंने बताया कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं, और इसमें क्या क्या बातें आती हैं उन बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगर इस क्लास में हम लोग सारी बातें नहीं सीख पाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे कि हम उसमें से जो बातें सीखी हैं वो देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो इस प्रक्रिया में, काउंसलिंग की प्रक्रिया में 7 भाग होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के स्टेजेस जिसे कहते हैं, यानी एक एक स्टेज से आप काउंसलिंग में प्रवेश करते हैं। यानी स्टेज का मतलब जो होता है उसके प्रक्रिया, उसके भाग जो है ना, कैसे शुरू करते हैं, कैसे वार्तालाप करना चाहिए, कैसे उस वार्तालाप को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उसका क्या विश्लेषण करना चाहिए, और किस प्रकार से आप उस वार्तालाप को अंत कर सकते हैं या उस काउंसलिंग सेशन को अंत कर सकते हैं, जिसे कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग। वो इन भागों में हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला जो है उसे बोलते हैं अटेंडिंग, है ना। आपने ये शब्द सुना है अटेंडिंग, अंग्रेजी का, है? हिंदी में अगर अटेंडिंग कहूं तो स्वीकार करना या किसी को स्वागत करना या किसी से मिलना, ये सारे शब्द आप देखेंगे अटेंडिंग में आपको हिंदी में मिलेंगे, है ना, है ना। जब कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, उसको अटेंड करता है ना। आप पहले बाहर बैठे हुए हैं, फिर आप अंदर जाते हैं और डॉक्टर के सामने जाके बैठते हैं,
है ना। तो अटेंडिंग उस शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे आप उन्हें स्वागत करते हैं या स्वीकृत करते हैं और उनके साथ आप वार्तालाप को शुरू करते हैं। जब हम ये इसमें काउंसलिंग में अटेंडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए आप काउंसलिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप उनका शारीरिक उपचार नहीं कर रहे हैं, है ना, आप उनका मानसिक उपचार कर रहे हैं, है ना। आप उनके अंदर जो उनकी इमोशंस है, यानी उनकी भावनाएं हैं, उनकी विचारधाराएं हैं, उनके सोचने का तरीका है, इसमें आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है शारीरिक रूप से, अगर वो दवाई नहीं खाना चाहता और आपने उसे जबरन दवाई खिला दी, तो क्या उसका शरीर उस बीमारी से लड़ सकेगा या ठीक हो पाएगा, हाँ या ना। जैसे कि अभी इस तरह से सोचते हैं कि मुझे बुखार है और मैं बोल रहा हूँ मैं दवाई नहीं खाना चाहता, लेकिन प्रवीण पास्टर ने मुझे बोला कि आपको तो खाना ही पड़ेगा और ये पैरासीटामोल आप खा लीजिए, आप खा के रहेंगे। अब मेरे को मन में इच्छा नहीं है मगर फिर मैंने खा लिया, तो मेरा बुखार कम होगा या नहीं, हाँ या ना। कम होगा, हाथ नहीं दिख रहा मुझे सबका, यस और नो। विजय आपको क्या लगता है, कम होगा नहीं होगा। विजय वैसे भी नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से अभी हाथ भी नहीं दिख रहा, आप दिख रहा, ठीक है, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भले ही मैं उस दवाई पर भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दवाई मेरे शरीर के अंदर जाकर अपना काम करेगी, है ना। लेकिन जब मानसिक बदलाव की बात आती है तो उसमें दवाई नहीं है जो आप दे रहे हैं, है ना, आप उनके मानसिक बदलाव के लिए बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो समस्या से समाधान चाहता हो। आप समझ पा रहे हैं, है ना। आप खुद सोच के देखिए, जब आपके पास कोई किसी बात को आपको किसी को समझाना हो और वो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं हो, तो क्या आपको लगता है कि आप चाहे उससे 2 घंटे बात करें, 3 घंटे बात करें, वो समझ पाएगा? नहीं समझेगा, है ना, क्योंकि उसने पहले ही ठान लिया है कि मुझे इसको सुनना है ही नहीं। जो हमने कहानी बोली थी उसी पे जाते हैं, जैसे कि जो पत्नी जो आई है या जो लड़की जिसको ब्याह के लेकर आए हैं, वो पास्टर के पास समस्या लेकर आए कि पास्टर साहब मेरी मदद करो, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है इस प्रकार से मुझ पे दोष लगा रही है, पति मेरी मदद नहीं कर रहे। सासू माँ से आप बात कर रहे हैं और सासू माँ जो है वो बोल रही है कि अरे ऐसा कैसा कर दिया, लड़की को ब्याह दिया और लड़की को खाना बनाना नहीं आता है। मैं क्यों समझूं, मैं जब छोटी थी तो मैं तो 11 साल से मैं खाना बनाना जानती थी, 6 को पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, और ये क्या है, अभी तो ये अभी भी आई है और आप उसे समझा रहे कि आपको थोड़ा उसे समय देना पड़ेगा। अरे हमें किसने समय दिया था। आपको क्या लगता है, आप उन्हें बैठे 1 घंटा उनसे बात करें, क्या वो आपकी बात को समझ पाएंगी? मुश्किल है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आशा नहीं है, एक जिज्ञासा नहीं है, एक विलिंगनेस नहीं है कि मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। ज्यादातर पति पत्नी के झगड़े या इस प्रकार के झगड़े में एक व्यक्ति होता है जो समाधान के लिए चाहता है, दूसरा व्यक्ति ज्यादातर सोचता है कि मेरी गलती इसमें है ही नहीं। इसीलिए ऐसे समय पर उन्हें समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरत है? अगर अगर अच्छा, इसी सिनेरियो को सोच लेते हैं जहां पर सासू माँ सुनने को तैयार नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को सुने, तो आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे जिससे आपको लगे कि आपकी बात को वो सुने? प्रशांत आप बताइए, हाउ विल यू कन्विंस सर, आप कैसे उन्हें बनाएंगे कि वो आपकी बात को सुन सके, सासू माँ? प्रशांत माइक अनम्यूट करके बोलिए। इसको मन को तैयार करना पड़ेगा पहले। कैसे करेंगे मन को तैयार? अभी करना पड़ेगा कि मतलब
आपका जमाना था अलग था और अभी समय पे मतलब अभी 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 तो पढ़ाई में लोग व्यस्त होते हैं, लड़कियां खाना बनाने सीखने में टाइम नहीं मिलता है, या अभी का अच्छा, जनरेशन अलग है। तो आप उन्हें इस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना? कोई और क्या कहते हैं उदाहरण देते हुए, जैसे अभी प्रशांत ने बताया। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, दूसरों को क्या लगता है सासू माँ को कैसे समझा सकते हैं? जैसी, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है अगर ऐसी सासू माँ आपके पास कोई आ जाती हैं तो आप उनको कैसे समझाएंगे? I think first listen to her maybe and let her pour out and get her confidence. Once you get the confidence, then she will give a listening ear. So I feel that way. जैसे हिंदी में बोलो थोड़ा सा ताकि सबको समझ में आए। Uh, वो सासू माँ को थोड़ा सा सुन लो ताकि उनके अंदर जो है वो सब वो निकाल देगी तो थोड़ा शांत हो जाएगी। फिर उनका भरोसा जीतना है ताकि फिर तैयार उनको मानसिक तौर से तैयार हो सके और उसको भी अच्छा लगेगा कि सामने वाला मेरी तरफ से है, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? प्रशांत ने जो बोला और जैसी ने जो बोला, है ना, आप हमेशा याद रखें, चाहे कितना भी झगड़ालू व्यक्ति हो, कोई आपकी बात को नहीं सुनना चाहता हो या आपसे कुछ सलाह मशवरा नहीं करना चाहता हो, लेकिन वो जरूर अपनी बात को रखना चाहेंगे, है ना? जब वो अपनी बात को रखना चाहेंगे और सामने वाला व्यक्ति उसके लिए उन्हें अनुमति दे रहा है, आपके स्वभाव से ये दिख रहा है कि आप चाह रहे हैं कि सासू माँ को जो बोलना है बोलने दें, है ना? इट शोज दैट यू आर वेलकमिंग हर टू शेयर हर, उसका भी जो भी दुख है, उसका भी जो सोचना है, वो आप उसे बोलने दे रहे हैं। देखिए काउंसलर का जो मैंने दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे, एटीट्यूड, काउंसलर का या सुनने वाले का स्वभाव कैसा है ना? अगर जैसे ही सासू माँ ने कुछ बोला और आप उसको काउंटर अटैक करके बोलते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो उसको भी दिखेगा कि आप सुन नहीं रहे हैं, है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि पति और पत्नी दोनों झगड़ा करके आए हैं या इस प्रकार से आए हैं और मेरे को दिख रहा है कि इनमें से पत्नी शांत है, लड़का शांत है और माँ जी जो है सबसे ज्यादा बोल रही है, तो एज अ काउंसलर आप उन्हें अलाउ करेंगे पहले बोलने के लिए। हो सकता है आप उन्हें एक गिलास पानी भी देंगे, आप उन्हें बिठाएंगे, उनसे पूछेंगे, जरूरत नहीं है कि उसी टॉपिक पे आए, आप उनसे सीधा पूछ सकते हैं आप ठीक है अभी, हाँ पानी देंगे। क्योंकि जब आप उनको, कोई भी व्यक्ति हो ना, कितना भी गुस्से में आए हो, जब आप उसे प्रक्रिया उसकी प्रतिक्रिया को आप जो है सहमति देते हैं और उससे फिर वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, तब वो थोड़े ठंडे होकर आपकी बात को सुनने में जिज्ञासु रहेंगे। तो पहला जो है मैंने कहा जहां पर क्लाइंट का विलिंगनेस होना चाहिए, क्लाइंट का मतलब जो व्यक्ति आया है वो चाहता है कि मुझे समाधान मिले। दूसरा जो है आपकी तरफ से आपका जो सुनने का तरीका है, आपका जो उनको स्वीकार करने का तरीका है, वो ऐसा स्वभाव आपको दिखना चाहिए जहां पर उनको दिख रहा है कि हाँ आप उनको मदद करना चाहते हैं, है ना? So that willingness has to come from the counselor and there is a willingness from the client as well. तीसरा और महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादातर हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो है एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है ना? क्लीन रूम है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, ये सब जो है हम लोग सोचते हैं कि ये खाली क्या कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में चल सकता है, लेकिन किस प्रकार का वातावरण आपको बनाना है जब आपके पास कोई समस्या के लिए आता है ना? मैं अभी याद करता हूँ एक बार एक पति पत्नी, जो मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया होगा, पत्नी जो है वो महाराष्ट्रियन है, पति जो है वो तमिलनाडु से है और उनके घर में कुछ झगड़ा हुआ तो पति पत्नी आ गए और उसके बाद उसके माता पिता आ गए और पासवान वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने शादी कराई वो पासवान वहाँ बैठे हुए हैं। और ये सारे, मैं उधर गया था एक सेशन लेने के लिए, तो मुझे बोला अरे हमारे पास काउंसलर है ट्रेंड, तो मुझे भी वहाँ बिठा दिया और उसके बाद बोला कि अब आप इनको बोलो ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो वो बैठे हुए पति पत्नी, सासू माँ बैठी हुई है, उनके दोस्त बैठे हुए हैं और इस तरफ 4-5 पास्टर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जब मैं उनसे बात करूंगा तो क्या आपको लगता है कि ये सही वातावरण है या इस वातावरण में कुछ सुधार आना चाहिए? क्या लगता है आपको, ये सही वातावरण है या नहीं है? नहीं है ना? बहुत ध्यान हमें रखना है ना कि जब कोई हमारे पास आता है या तो फिर आप
उस प्रकार से उनसे बोले कि आज मैं आपको शायद समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बच्चे क्लास में नहीं है, वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी इंटरनेट पे है, जो भी है। देन बट यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, आप इस प्रकार का वातावरण बनाएं जहां पर उनको ना चाहिए कि हाँ आप उन्हें सुनने के लिए तत्पर है ना। तो मैंने वहां पे क्या किया, क्योंकि वो छोटा कमरा था, मुंबई में तो हम जानते हैं हमारे पास 5-6 कमरे हैं नहीं, तो मैंने बाकी लोगों से निवेदन किया कि मैंने कहा मैं आप सबकी बात को सुनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब बाहर खड़े हो जाएं, पहले मुझे इन कपल्स को सुनने दीजिए, फिर मैं आप बाकी लोगों को पानी पिलाया सबको। और जो मेरे साथ बड़े पासवान थे उनसे भी मैंने निवेदन किया, क्योंकि उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी और मुझे पता था कि वो क्या चाह रहे हैं। उन्होंने पहले ही मुझे बताया कि सुमित ऐसे ऐसे करना है ना। जब तक मैं पूरी बात नहीं सुनूंगा, मैं उनकी आधार पर अगर इनको काउंसलिंग दूंगा तो वो भी सही नहीं है। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि पास्टर साहब हो सकता है आपके सामने खुल के बात ना करें, कृपया आप भी थोड़ा सा बाहर हो। देन इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट। बहुत जरूरी है जब हम किसी के बारे में किसी से बात करते हैं तो उस बात को, जैसे नीचे लिखा है क्लीन रूम, प्रॉपर वेंटिलेशन। क्यों? क्योंकि जब भी मानसिक तनाव से कोई आता है तो जहां आप बैठ के उससे सलाह मशवरा कर रहे हैं, वो जगह जो है वो भी बहुत प्रभाव डालता है ना। आप खुद सोच के देखिए, जब आप सुबह सुबह आप अपने बेड से उठे और आपने देखा कि आपके चारों तरफ गंदगी है, आपको कैसा लगेगा? दिन की शुरुआत ही आपको खराब लगेगी, है ना। लेकिन आप जैसे उठे, आपने देखा सब क्लीन है, तो आपके अंदर ही एक अच्छी भावना आती है। उसी प्रकार से जब आप किसी को काउंसिल करते हैं, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है और बच्चों ने खिलौने डाले हैं, उनको बुलाने से पहले आप वो सब क्लीन करके रखें, ताकि जो व्यक्ति आता है उसको दिखे कि इवन आपका घर भी उनका स्वागत कर रहा है ना। वेंटिलेशन क्यों जरूरी है, खिड़कियां खुली रखनी क्यों जरूरी है? जब हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं ज्यादातर, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है ना। जब स्ट्रेस हमारा ज्यादा होता है, हमारा बीपी हाई होता है, तो आप देख सकते हैं पसीने छूटते हैं और हम लोग सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो मानसिक रूप से जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर उसका प्रक्रिया करता है ना। जो वो बैठे हैं वो भी कंफर्टेबल सीट अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया। और जब हम बैठते हैं, जब विशेष करके किसी से समस्या को हमें सुनना है, आमने सामने बैठे ना, ये नहीं कि तू मेरी मित्र है तो आजा तू भी मेरे साथ बेड के साइड में बैठ जा और आपने गले में हाथ डाल लिया, अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है, वो सब आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन जब आप उन्हें पहले सुनना चाहते हैं, और अच्छा है कि एक दूरी बना के रखें दोनों के बीच में, है ये प्रोफेशनल तरीका है कार्य करने का, है ना। वो आपके ऊपर निर्भर है। अब आपके घर के कोई सदस्य है, कोई है जो इतनी कंफर्टेबल आप बैठते हैं तो ठीक है, लेकिन आमने सामने रहना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आई कांटेक्ट आपका उनसे बना रहना चाहिए। काउंसलिंग में हम बोलते हैं कि 70% जो है नॉन वर्बल एक्सप्रेशन हमको पता होने चाहिए, यानी उनका चेहरे पर क्या प्रभाव आ रहा है, वो किस प्रकार से बोल रहे हैं, उनका टोन कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है उनके शब्दों से ज्यादा। क्योंकि जब आप उसको परख पाएंगे तब आप उनके तनाव को भी समझ पाएंगे या उनकी समस्या को भी समझ पाएंगे। इसलिए आई कांटेक्ट आपका उस व्यक्ति से बनना बहुत जरूरी है ना। तो पहला कार्य काउंसलिंग में क्या है? अटेंडेंस। मैं जानता हूँ इस बात को आप जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आज आपने ये क्लास में इस बारे में पढ़ा है, तो कल अगर आपके पास कोई भी कोई समस्या लेकर आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मैंने देखा है पास्टर सैम के पास मैं जब गया था, उनका एक ऑफिस का रूम है, जब कोई बात होती है वो ऑफिस के रूम में आमने सामने बैठ के बात करते हैं, है ना। और उस ऑफिस के रूम में कोई और आता जाता नहीं है, चाय के टाइम पे कोई आ गया तो आ गया, घर के अंदर बैठ के बात नहीं करते हैं। क्यों? जो हमने पहला बोला था, एक कॉन्फिडेंशियलिटी। जब अगर आपकी पत्नी भी सामने बैठी हुई है, वो भी सामने बैठे हुए हैं, तब आपको लगेगा कि अरे कॉन्फिडेंशियलिटी का मेरा क्या होगा ना। तो वो बहुत जरूरत है कि आपका एनवायरनमेंट जो है अटेंडिंग हो, आपका स्वभाव जो है अटेंडिंग हो, और जो आया है उसके अंदर भी एक विलिंगनेस हो। जब उसके अंदर विलिंगनेस होती है तो आप उनकी मदद कर पाते हैं। मैंने देखा है काफी केसेस में जहां पर पति जो है बात करना नहीं चाहते हैं, पत्नी जो है वो चाहती है मेरा पति कलीसिया में आए, बात करें, लेकिन फिर पास्टर पासवान उनके घर जाके विजिट करते हैं। लेकिन जो जिस प्रकार से पासवान या जो अगुवे हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, पति को लगता है कि अरे हाँ जरूर मुझे इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, है ना। वो हमारा तरीका होना चाहिए जब हम किसी से बात करते हैं, है ना। और उस तरह से करने से क्या होता है, कितना भी
क्या कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति क्यों ना हो, he will know that you are accepting it। इस दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत पता है क्या है, कि स्वीकृत करना। हम पूरी कोशिश करते हैं हमारे हर एक कामों से कि हमें लोग स्वीकृत करें, और उसके क्या कहते हैं, प्यासे हैं सब लोग। तो थोड़ा सा भी अगर आप उन्हें वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यू विन देयर हार्ट, कि आप उनको मदद कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अटेंडिंग। इसके ऊपर किसी को कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकता है। कोई सवाल अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें, क्योंकि आज मैं बहुत बोल रहा हूँ और आप लोगों से कम बोलने का अवसर दिया है। सो अभी तक जो पढ़ाया क्लियर है, 4 पिलर काउंसलिंग के, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग जो कि 7 है। उसमें से हमने पहला देखा अटेंडिंग है। अटेंडिंग में हमने देखा कि क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है काउंसलिंग में, जिसकी चर्चा अभी हमने करी थी पहले ना, लिसनिंग को हम बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलूंगा ध्यान पूर्वक सुनना, है ना। इंग्लिश में 2 शब्द हैं। इंग्लिश में एक शब्द होता है हियरिंग, वो भी सुनना है। लिसनिंग को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हियर जो है यानी सुनने से थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है, जहां पे आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, है ना। काउंसलिंग में लिसनिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है, जहां पर आप ध्यान पूर्वक उन्हें सुन रहे हैं। और ये बहुत जरूरत है। हम हो सकता है इस काउंसलिंग के जो हमारे स्टेजेस के बाद एक टेक्निक सीखेंगे कि किस प्रकार से आप ध्यान पूर्वक या एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं, उसको आप प्रशिक्षण कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या जो वो ये है कि हम बोलने के लिए तत्पर और सुनने के लिए कम, क्या कहते हैं, जिज्ञासु होते हैं। याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम बोलने में विलंब करो और सुनने में तत्पर रहो, लेकिन हम उल्टा करते हैं। किसी ने ऐसा कहा कि हमें 2 कान इसलिए दिए गए हैं ताकि हम ज्यादा सुने, और एक मुंह इसलिए दिया गया कि हम कम बोले। और पास्टर लोगों के लिए तो फिर प्रशिक्षण ही है कि भाई आप बोलना है। तो काफी बार हम इतने अगुवाई में इतने हो जाते हैं कि हम सामने वाले को बस बोलते ही रहते हैं। मेरा एक दोस्त है, व्यंगिक रूप में उसने कहा, जो पास्टर है दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जब मैं अस्पताल में था तो एक आंटी आती थी, वो हिंदू परिवार से आया, आंटी आती थी, प्रार्थना करती थी, और उन्होंने मुझे मत्ती के सुसमाचार से बोलना शुरू किया, और हर दिन आके मुझसे बोलती रहती थी। और मैंने उनसे पूछा कितनी किताबें हैं, तो उन्होंने बोला बहुत किताबें बेटा, अभी तो मैंने मत्ती पे शुरू किया है। तो उसने बोला आंटी आप जो कहोगे मैं कर लूंगा, मगर बस आप अब ये हर दिन आके बोलना बंद कर दो। उन्होंने मजाक की तरीके से कहा, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया और जो पास्टर भी है। बट हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें बोलना है, हमें बताना है, बहुत अच्छा है। संदर्भ हमें समझना बहुत जरूरी है ना। और कब कैसे बोलना है ये सीखना बहुत जरूरी है। और सुनना जो है वो बहुत जरूरी है ना। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम उस व्यक्ति को सही प्रकार से मदद नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा प्रमुख कार्य है सुनना, जिसे मैं कहूंगा ध्यान पूर्वक सुनना, है ना। तुरंत उसके ऊपर प्रत्युत्तर देना जो है वो ध्यान पूर्वक सुनने में नहीं आता है ना। जैसा मैंने कहा, अगर कोई आपके साथ में आप सामने आके बोलते पास्टर साहब, और अभी विशेष करके जैसे हमने बोला पैंडेमिक के समय में आपको बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे, पास्टर हैं आप या सेवकाई में हैं आप, या कोई प्रार्थना के लिए कॉल कर रहा होगा, और आप तुरंत उनका आप बोलते हैं मेरा जो पति है वो कोविड अस्पताल में है, मैं क्या करूं। तभी आप बोलते हैं आप बहन तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए अभी प्रार्थना करता हूं, और आपने प्रार्थना करके फोन रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर बात करूंगा। लेकिन जरूरत है कि आप उनको पहले सुने, है ना। लोगों की समस्या, आधी से ज्यादा समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम सही से सुने और उन्हें अनुमति दे कि हम बोले। पति पत्नी के बीच में झगड़े आसानी से सुलझ सकते हैं अगर दोनों सुनने को तत्पर हो। माता पिता के बीच में, परिवार के बीच में, और बच्चों के बारे में अगर कहा जाए तो अगर हम देखेंगे कि बच्चों को तो सुनने में हम बहुत कमजोर है ना। बच्चे अगर कुछ बोलते हैं तो उससे पहले हम लोग सोच लेते हैं कि अरे ये क्या बोलेगा, ये तो बच्चा है, इसके बोलने से क्या पता चलेगा,
एंड वी नेवर अलाउ देम टू स्पीक, है ना। बहुत ज़रूरत है काउंसलिंग के भाग में, क्योंकि हम किसी को भी तनाव में अगर पाते हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं, वी हैव टू गिव एन एक्टिव लिसनिंग ईयर टू देम, ध्यान से सुनना है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आप उसे सुन रहे हैं? आपको क्या लगता है, अगर आपके सामने कोई बात कर रहा है और आप उसे जताना चाहते हैं कि आप उसे सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? How that other person will know that you are listening? अभी आप लोग मेरे सामने स्क्रीन में है, मुझे कैसे पता चल रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे? We need to react back. Our gestures will show, our nodding maybe, or something. Our body language will show that we are listening to them. Okay. जैसी का कहना है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब हमारा जो चेहरा है या हमारा जो शरीर है, उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ना। जैसे सर हिलाना हो गया, इस प्रकार से। और कोई उत्तर देना चाहेगा? कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि आप सुन रहे हैं? सोचिए, जब आप फोन पे बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चलता है? वो तो देखा तक नहीं है आपको, कैसे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं? आप क्या प्रशांत बोलो। वो जो सामने वाला जो व्यक्ति रहेगा, उसको जब पता चलेगा कि वो अपने को प्रश्न पूछेगा, बीच में प्रश्न पूछेगा या देगा कि हाँ मुझे सुन रहा है, अब उसको हाँ ना रहना पड़ेगा। प्रश्न पूछने से, वेरी गुड, प्रश्न पूछने से पता चलेगा या उत्तर देने से पता चलेगा वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है। और जब हम कॉल करते हैं, जैसे मैं किससे बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो समझ सके कि मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आजकल नेटवर्क का बहुत इशू है, तो क्या करते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोल, ऐसे बोलते हैं, है ना। जैसे प्रशांत ने बताया, उसी तरीके से जब आप किसी को एक्टिवली सुनते हैं तो एक तो आपका चेहरा, आप किस प्रकार से सुन रहे हैं, है ना, वो आप किस प्रकार से बैठे हुए हैं, है ना। जूम के अंदर काफी बार, अभी जैसे हम जूम में, हमारा क्या होता है कि आप लोग का जो स्क्रीन जो है, मेरा जो ऊपर कैमरा है, लेकिन आप कभी मुझे नीचे दिखते हैं, कभी साइड में दिखते हैं, तो मैं फिर उधर देखने लगता हूँ, तो आई कांटेक्ट नहीं बन पाता। लेकिन जब आप किसी के सामने बैठे हैं तो आई कांटेक्ट बनाकर बैठे हैं, है ना। और दूसरा जो है आपके बैठने का पोस्चर, आप सुनते हैं सुनते हैं सुनते और ऐसे बैठ गए आप, है, और थोड़ी देर में फिर लेट गए, अरे बाप रे बहुत बोल रहे हैं, तो उसको साफ दिख रहा है कि आप सुन कम रहे हैं, थक रहे हैं आप सुनते सुनते, है ना। या आप सुन रहे हैं और उसके बीच में आपने बोले एक मिनट, अरे सुमित सर का कॉल आ गया, 1 मिनट भाई, हाँ, और आप उसके बीच में क्या कर रहे हैं? कॉल अटेंड कर रहे हैं। तो कैसा लगेगा सामने वाले को? सामने वाला बोलेगा, अच्छा सुमित सर का, एक बार उनको मेरा भी जय मसीह की बोल देना, ऐसे बोलेगा। वो तनाव में आया हुआ व्यक्ति है ना। तो जब ऐसा कुछ है, अगर आपको एकदम अर्जेंट कॉल उठाना है तो क्या करोगे आप? देखो, पहला तो जब आप किसी व्यक्ति को समय देते हैं तो आप अपने बाकी सारे काम जो है अलग करके रखें और बोले कि ये आधा घंटा मैंने तुम्हें दिया है। उससे क्या है, आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप मुझे कॉल करते हैं और मुझसे बोलते हैं सर अब मेरे को आपसे बात करनी है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और मैं बोलता हूँ ठीक है, और आपसे बात करते करते मैं बोलता हूँ अरे यार मुझे ये कॉल आ गया, मुझे वहां जाना है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप एक दिल से आए कि मेरे को सुन सके कोई, या मेरी बात के लिए कोई मेरी मदद कर सके। So remember that how you would like to treat when you will go is something you have to consider. तो जब आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करे, तो आपको भी बहुत ज़रूरत है कि जब कोई आपके पास आता है, you give them an attentive ears. आप पूरा ध्यान उनकी तरफ दें। और विशेष आपको क्या सोचना है, देखो मैं जब तक ध्यान से नहीं सुनूंगा मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको बड़े ध्यान से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जब आप सुन रहे हैं, जैसे मैंने कहा,
जब कोई व्यक्ति, क्योंकि काउंसलिंग में ज़्यादातर आप क्या ध्यान देते हैं कि उनका मनोविज्ञान, उनकी भावनाएं किस प्रकार से उनके ऊपर हावी हो रही हैं, किस विचारधारा से वो बात कर रहे हैं, ये सब वो सब सुनने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है। शब्द के टोन, शब्द के भीतर उनका दर्द क्या छुपा हुआ है, वो भी जानना जरूरी है। मैं वापस जाता हूँ उदाहरण के तौर पे, आपको क्या लगता है कि सासू माँ इतने गुस्से में क्यों है? हमारी कहानी में हम वापस आते हैं एंड देन विल स्टॉप इट हियर। क्यों लगता है कि सासू माँ बहू को स्वीकार नहीं कर पा रही? प्रवीण, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहू ने शायद ध्यानपूर्वक सुना नहीं है सासू माँ का। मतलब आपको लग रहा है कि शायद सासू माँ ने बताया होगा कि बेटा खाना कैसे बनाना है, और उन्होंने, उस बेटी ने सुना नहीं है। ओके, और कोई? रविंद्रा, आज तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं। विजय तो एकदम, विजय वहाँ लाइट नहीं है क्या? शायद मेरे ख्याल से बारिश है तो शायद लाइट नहीं है। हाँ, पास्ट यहाँ पर लाइट नहीं है। मुझे लग रहा था। हाँ विजय, आपको क्या लगता है? आप बोलिए, सुनाई दे रहा है मुझे। मुझे लगता है कि उसको, सास को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है घर का, इसको इसलिए उसको अच्छा सही नहीं लग पा रहा है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मैंने सासू माँ के कुछ डायलॉग बोले थे, याद है आपको? मैंने कहा था जब सासू माँ आई, सासू माँ ने बोला कि मैं कितने साल से काम करना शुरू कर दी थी, जब मैं 11 साल की थी तब से मैंने काम शुरू कर लिया था और मैंने तब से काम सीखा था, अब से इसने काम नहीं सीखा। तो आपको क्या लगता है? एक तो आपने कहा कि हो सकता है बीवी जो है, यानी उनकी बहू जो है, नहीं सुन रही है, और क्या हो सकता है? जैसे यू वांट टू टेल? Her past has impacted her life, so what she has gone through, it's based on her what she has gone through na, that she's not able to get over her pain, actually that is why she is reacting like that. सासू माँ को कभी किसी ने मौका नहीं दिया जो मौका बेटी मांग रही है, बहू मांग रही है यहाँ पे, है ना? 11 साल की उम्र से सासू माँ ने किचन के अंदर ही काम किया है। उसके अंदर भी एक दर्द है कि वो समझ, है ना? और काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारा शोषण होता है, हम जब उस शोषण से बाहर आते हैं, लेकिन उस पीड़ा के कारण हम दूसरों का शोषण करते हैं, है ना? जब मारपीट की बात हो जाती है या कोई एडिक्शन में चला जाता है, यानी लत में चला जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई शोषण का कार्य भी होता है ना? और उन बातों को समझने के लिए उनके शब्दों को ढंग से सुनना जरूरी है ना? सासू माँ ने जब कहा कि मैं 11 साल से हूँ, तो अगर माँ होता, मैं बैठ के उनसे बात करता, मैंने कहा आपने बहुत कुछ अपने जीवन में सहा है, मेरे ये शब्द आपने बहुत को पूरा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सासू माँ को समझने के लिए कोई तैयार है। सासू माँ चाह रही है कि अब जाके मैं किचन से बाहर निकलूं, है ना? इट्स एन फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट। बट उन सबको जानने के लिए केवल उनके शब्द नहीं, उसके पीछे की भावना को भी समझना बहुत जरूरी है। जो कि इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि हमेशा आपके वर्ड्स के पीछे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान से सुनने से ही हमें समझ में आता है कि वो व्यक्ति क्यों है। और जैसा प्रशांत ने कहा था, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उनसे सवाल पूछते हैं कि आपका कहने का मतलब ये था, तो नहीं पास्टर साहब, मेरे को सासू माँ से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे को आता ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, बहू को वैसे सासू माँ पसंद है, मगर इस विषय के लिए शायद सासू माँ से अगर कहें खाना बनाने के अलावा बहू से और कोई दिक्कत है आपको, ना वैसे तो ठीक है वो, तब आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ एक तरीका है जहां हम इनको जोड़ सकते हैं कुछ ना कुछ करके, है ना? तो इसीलिए काउंसलर्स को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है, जिसके कारण आप उन्हें सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, सही तरीके से आप उनकी मदद कर पाएंगे। स्टॉप दिस क्लास है, मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। हमारे पास 5 और मिनट हैं, आगे हम लोग काउंसलिंग का और प्रोसेस देखेंगे। लेकिन जैसे आज मैंने कहा, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे मैंने कहा, पहला
अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं जो आप तनाव में गुजर रहा है और आपसे बात करना चाहता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देना है ना, कि आप जब आपसे कोई बात करना चाहते हैं, आप समय फिक्स करें और जो समय आप उनके साथ फिक्स किया उसका आदर करें। इन केस अगर आप उस समय में उनसे बात नहीं कर सकते तो आप पहले ही उनको कॉल करके बताएं कि आज मैं शायद आपको कॉल नहीं कर पाऊंगा या मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये सब करने से आपका और उनके संबंध में दरार नहीं आएंगे, वो समझ पाएंगे, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, है ना। कलीसिया में या बाहर में कोई भी हो, वो रिस्पेक्ट इवन अपने बच्चों के साथ बहुत ध्यानपूर्वक, जब बच्चे किसी बात के लिए कहते हैं कि मम्मी मुझे 2 मिनट चाहिए, पापा मुझे 2 मिनट चाहिए, और आपने कहा कि हाँ मैं दूंगा, और उसके बाद आपको लगता है कि अरे आप भूल गए, है ना, उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। सो यू शुड बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ दैट, है ना। और जैसा हमने कहा 4 चीजें जो काउंसलिंग की हमने सीखी वो हमें याद रखना है, हमें दोष आरोप के साथ नहीं देखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखना है, और जो स्टेजेस हैं वो हम पढ़ते जाएंगे। हमने 2 चीजों को आज देखा, अटेंडिंग और लिसनिंग। किसी का कोई सवाल या कोई चैलेंज की चुनौती, जब हम ये करना चाहते हैं मगर ये हो नहीं पाता? ओके, अभी तक का क्लास लाभदायक था आप लोगों के लिए? लाभदायक है ग्रेस? ओके, थैंक यू सो मच। हमारे पास 3 और मिनट हैं, अभी भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ओके, इफ नॉट हम लोग क्लास प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे और फिर अगली क्लास की जो सूचना है पास्टर सैम आप लोग को बाद में देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना करें। ओके, थैंक यू। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप हमें हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और आप हमारे मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रभु, जब हम आपकी संतान हैं और आपने हमें अनुग्रह किया प्रभु कि हम इस बात को समझ पाए हैं कि हमारा जीवन जो है प्रभु वो दूसरों के मदद के लिए हो, तो जो बातें हम लोग यहाँ सीख रहे हैं प्रभु काउंसलिंग में, वो हमारे जीवन में हम प्रयोगिक कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर पिता कि हम जब कोई हमारे पास सुनने आता है तो उन्हें वो प्रभु सुनने के वो कान हम दे सके पिता, जैसे तेरा वचन कहता है सुनने के लिए तत्पर रहें। हमारी मदद करके प्रभु हम आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु उनको सही प्रभु मार्गदर्शन दे सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो कुछ आज हमने सीखा है वो हम अपने जीवन में प्रयोगिक कर सके प्रभु, वो हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण बने ताकि दूसरों के जीवन में भी अनुग्रह का कारण बने। प्रार्थना करते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, हमारे परिवारों को संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आपके हर प्रियजन के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं, इस पैंडेमिक के समय में आपकी कृपा, आपका अनुग्रह और आपकी चंगाई हम पे, हमारे देश पर और जहां हम रहते हैं सभी के ऊपर बने रहने पाए पिता। प्रभु आज जुड़े हुए सभी को आप आशीषित करें, उनके प्रभु संघर्ष को आप जानते हैं, उनके समस्याओं को आप जानते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका अनुग्रह उनके परिवारों पर, उनके जीवन पर, उनकी सेवकाई पर होने पाए, ताकि प्रभु इनमें से प्रत्येक प्रभु आपके धन्य दास और दासी बन सके। महिमा आदर आपको देते हैं, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर। Thank you, Pastor. God bless you. थैंक यू मास्टर। थैंक यू पास्टर। Thank you.